غالب کے متعلق معروضی معلومات کے بعد اب ہم ان کے فن اور ان کی شخصیت کا تجزیاتی مطالعہ پیش کریں گے۔ ناظرین، شخصیت اور فن کے متعلق بات کرنے سے پہلے اس کے معنی جاننا بہت ضروری ہے۔ شخصیت کیا ہے؟ شخصیت ایک مجموعہ ہے بشری صفات کا۔ فن کیا ہے؟ فن وہ صلاحیت خاص ہے جو کسی فرد کو اپنے عہد کے افراد میں انفرادیت بخشتی ہے اور فوقیت بخشتی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ غالب جو ہے وہ اپنے عہد میں کس طرح سے ہمیں الگ نظر آتے ہیں۔ غالب کا جو عہد ہے ناظرین، وہ عہد ہے جب مغل سلطنت کی حکومت تھی پورے ہندوستان پر، اور بہادر شاہ ظفر جیسا جو کہ شاعر بھی ہیں اور حاکم بھی ہیں، وہ غدارشین تھے اس وقت، اور غالب کو انہوں نے ملک الشعراء کا بھی خطاب دیا ذوق کے انتقال کے بعد۔ تو آئیے ناظرین، سب سے پہلے اب ان کی شاعری کی پردے میں غالب کی جو شخصیت ہے یا غالب کا جو فن ہے اس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ غالب کا شعر ہے کہ بازیچے اطفال ہے دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے، ایک کھیل ہے اورنگے سلیماں میرے نزدیک، ایک بات ہے اعجاز مسیحا میرے آگے۔ خود پسندی و خود ستائی، تخیل، پروازی اور معنی آفرینی کلام غالب کی نمایاں خوبیاں ہیں۔ نثر و نظم میں غالب اپنا ثانی نہیں رکھتے۔ نظم میں اگر ہم شاعری کی بات کرتے ہیں تو وہ غزل میں بالکل اپنا ثانی نہیں رکھتے، اور ان کے جو انداز ہوتے ہیں، جو ان کا استفہامی انداز ہوتا ہے خاص طور سے، وہ بالکل ان کو اپنے عہد میں سب سے الگ لا کر کھڑا کرتا ہے۔ اور اگر ہم نثر کی بات کرتے ہیں تو ان کے خطوط کی بنیاد انہوں نے ہی ڈالی، ان کے خطوط سے ہی اردو نثر میں خطوط نگاری کی، مکتوب نگاری کی بنیاد پڑی، اور اس کے بعد یہ پوری ایک روایت بن گئی۔ خیر، اس پر ہم تبصرہ تب کریں گے جب ہم نثر میں اور خطوط نگاری کی بات کر رہے ہوں گے۔ فی الوقت ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے اردو شاعری، اور اس میں بھی ہم غزل کی بات کر رہے ہیں۔ تو ہمارا جو آج کا ویڈیو ہے وہ غزل پر ہی منحصر ہوگا۔ ناظرین، داستان رزم میں ان کی زبان تیغ جوہردار ہے، اور التزام بزم میں غالب کا قلم مسئلے ابر گوہر بار ہے۔ دیوان غالب کی اشاعت کے بعد غالب کے کلام کی بے شمار شرحیں لکھی گئیں، اور آج جس طرح سے ان کا کلام پڑھا جا رہا ہے اور نوجوان جو طبقہ ہے وہ بھی غالب کے جو اشعار ہیں ان سے نئے نئے معنی نکال رہا ہے۔ جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ غالب اور اقبال یہ دو شعراء حضرات ایسے ہیں جن کو کل بھی جس طرح سے مقبولیت حاصل تھی، آج بھی انہیں اسی طرح سے مقبولیت حاصل ہے، اور یہ مقبولیت دن بہ دن بڑھتی ہی جا رہی ہے، کیونکہ ان کی اشعار میں تہداری ہے، معنی آفرینی ہے، اور ہر زاویے سے جب ہم ان کے اشعار کو پڑھتے ہیں تو ایک الگ طرح کا لطف ہمیں اس سے ملتا ہے۔ ناظرین، غالب کی مقبولیت اور ان کی انفرادیت کا راز ان کے مزاج کی شوخی و ظرافت، ان کے فن کی تہداری، شعری تجربوں کی دلکش پیشکش اور کلام میں موجود شعریت میں پوشیدہ ہے۔ شعریت کیا ہے؟ جمالیاتی تجربہ کیا ہے؟ تہداری و معنی آفرینی کسے کہتے ہیں؟ استفہام کیا ہے؟ فکر و فلسفہ اور معرفت کے مضامین کیا ہیں؟ ثنائے بدائیں کیا ہے؟ اسلام کیا ہے؟ اسلام کی تاریخ کیا ہے؟ ان تمام نکات کو سمجھے بغیر نہ تو کلام غالب کی تفہیم ممکن ہے اور نہ ہی کلام غالب کی شرح۔ ناظرین، کلام غالب کی شرح یا کلام غالب کا مطلب سمجھنے کے لیے ہمیں دیوان غالب اور اس کی شرحوں کے ساتھ ساتھ غالب شناسی پر لکھے گئے مضامین کا مطالعہ بھی درکار ہے۔ اس کے لیے ہم آپ سب کو سجیسٹ کرنا چاہیں گے کہ دیوان غالب کے کلام پر یا غالب کی شاعری پر، ان کی شخصیت پر، یا ان کے دیوان کی جو شرحیں لکھی گئی ہیں اس کا مطالعہ آپ بذات خود کریں۔ ہم تو یہاں پر بتائیں گے ہی، جو بھی آپ کے ایشوز ہیں، جو بھی کنفیوژن آپ کو ہے، وہ ہم یہاں پر کمنٹ باکس میں جب آپ ہم سے کوشچن کریں گے تو ہم اس کا جواب ضرور دیں گے، اور اس سے پہلے ہی ہم اس لیکچر میں بھی کافی باتیں آپ پر ظاہر کر دیں گے۔ لیکن آپ ان کتابوں کا مطالعہ ضرور کریں، لائبریری سے ایشو کرا کے کریں یا آپ نیٹ سے دیکھ کے کریں۔ خیر، ایز یو وش۔ فی الحال یادگار غالب جو ان کے ہی شاگرد مولانا الطاف حسین حالی نے لکھی تھی، بہت ہی اچھی کتاب ہے جس میں ان کی شخصیت پر، ان کی شاعری پر بہت اچھی طرح سے تبصرہ کیا گیا ہے، ان کی غزلوں پر، اور ان کی کچھ اشعار کو انہوں نے شرح بھی لکھی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ مجنوں گورکھپوری ہیں، غالب شخص اور شاعر ان کی کتاب کا نام ہے۔
रशीद अहमद सिद्दीकी जिन्होंने एक लेक्चर दिया है और उसी को उन्होंने पब्लिश कर दिया है, और उनकी किताब का नाम है गालिब की शख्सियत और शायरी। ये किताब भी बहुत अच्छी है, इसमें उन्होंने अपना जो तनकीदी शऊर उनका है वो उन्होंने वहाँ पर पेश किया और गालिब को बहुत ही अच्छे अल्फाज से नवाजा है, उनकी शख्सियत के मुतालिक भी और उनके फ़न के मुतालिक भी। अब हम बात कर लेते हैं अब्दुर्रहमान बिजनौरी की। इनकी किताब का नाम है महासिन कलाम गालिब। लोग कहते हैं कि इन्होंने बहुत ही ज़्यादा इनफैक्ट इन्होंने मुबालगा एक तरह से किया है कि वो ये कह देते हैं कि कलाम गालिब जो है, गालिब की जो किताब दीवान है उनका, दुनिया में मुक़द्दस किताबें सिर्फ दो हैं, एक मुक़द्दस वेद, दूसरा कलाम गालिब, दीवान गालिब। तो उन्होंने ये बात कही है, तो इसका भी मुताला आप लोग ज़रूर करें, हर ज़ाविये से गालिब को देखना ज़रूरी है। शम्सुर रहमान फारूकी की किताब है तफ़हीम गालिब, इसका मुताला भी हम सब ने किया है। और तफ़हीम गालिब की खुसूसियत ये है नाज़रीन कि शम्सुर रहमान फारूकी सबसे बड़े नक़ाद इस वक्त के मौजूदा भी वो ज़ी हयात हैं, तो वो मतलब बहुत ही अच्छी किताब है तफ़हीम गालिब, जो जिसमें उन्होंने कलाम गालिब की शरह को पेश किया और इसके पहले भी जो शरह लिखी गई हैं, चाहे वो बेखुद मुहानी ने लिखी हो या वो तबातबाई ने लिखी हो, इन तमाम शरहों का भी उन्होंने उसमें मुताला पेश कर दिया है। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि शम्सुर रहमान फारूकी जो है वो सनाए बदाई के भी माहिर हैं, तो उन्होंने इस तनकीदी शऊर को भी उस किताब में पेश किया है, इसका मुताला आप लोग ज़रूर करें। इसके अलावा नूरुल हसन नकवी की लिखी हुई किताब है गालिब शायर और मकतूब निगार, इसका मुताला भी ज़रूरी है, इसको भी कर लीजिएगा। और नूरुल हसन नकवी का जो तर्ज तहरीर है मुख्तसर और जामे है, इनकी दो किताबें हैं, एक ये तारीख़ अदब उर्दू है और दूसरी तनकीद पर है। ये दोनों किताबें बहुत अच्छी हैं जो कि बिल्कुल बेसिक है, ये एमए और बीए के स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ही ज़रूरी हैं। गालिब शायर और मकतूब निगार इनकी किताब है और बहुत ही अच्छा तर्ज तहरीर है, इन्होंने हाईलाइट किया है गालिब की शख्सियत को भी और उनकी शायरी को भी, उनकी मकतूब निगारी को भी। इसके बाद दीवान उर्दू गालिब, ये सैयद अली हैदर तबातबाई की लिखी हुई शरह है जो बहुत ज़ख़ीम भी है, इसको भी आप लोग पढ़ सकते हैं। इन्होंने 1 बाय 1 अशार लिखे, दिन उसकी तशरीह पेश की है। इसके बाद नाज़रीन गालिब की ज़िंदगी के बारे में थोड़ी सी बात हम कर लेते हैं कि एक्चुअली उनकी लाइफ कैसी गुजरी। तो जैसा कि पहले भी मारूज़ी सवालात जब आपको बताए गए तो उसमें ये बात बताई गई है कि गालिब जो थे वो थे तो बहुत मतलब हाई लेवल की फैमिली से बिलोंग करते थे, दौलत भी बहुत थी, लेकिन क्या हुआ कि वालिद का इंतकाल बहुत जल्दी हो गया। ठीक है, सबसे बड़ी चीज़ तो ये कि वालिद का इंतकाल हो जाना ये बहुत तकलीफ़ की बात होती है। उसके बाद क्या हुआ कि चचा हुए, चचा ने जिम्मेदारी ली, लेकिन कुछ अरसे बाद उनका भी इंतकाल हो गया। अच्छा, फिर क्या हुआ, 1857 की जो जंग आज़ादी है, आप देखें कि ज़ौक़, मोमिन, गालिब, इन तमाम या नासिर, इन तमाम शोरा हजरात में जो नासिर या नसीर कुछ शायर का नाम है, तो इन शोरा हजरात में वाहिद गालिब एक ऐसे शायर हैं, इन हमस्र शोरा में वाहिद गालिब एक ऐसा शायर है जिसने 1857 की जंग आज़ादी को बजाते खुद देखा है अपनी आंखों से, और जिसमें जो कत्ल हुए लोग उसमें कुछ गोरे भी शामिल थे, उसमें हिंदुस्तानी भी शामिल थे, और उन सबको गालिब जो है वो अजीज रखते थे। तो आप देखें कि अगर हमारा कोई अजीज कत्ल हो जाता है तो हमें कितनी तकलीफ होती है, और वो तो इतने अजीज उनके कत्ल हुए कि एक खत में वो यहाँ तक कह देते हैं कि अब जो मैं मरूंगा तो मेरा कोई रोने वाला नहीं होगा। तो ये तकलीफ है गालिब की, जो अक्सर उनके कलाम में भी नजर आती है, लेकिन उमूमन लोग जो कहते हैं वो यही कहते हैं कि गालिब जो है उनके कलाम में शौकी और ज़राफ़त है, और उनके ऊपर जब गम पड़ता है तो वो उसको जाहिर नहीं करते, तंज़ो मज़ाक़ के पैराए में अपनी बात को कह देते हैं। लेकिन क्या सच में ये बात बिल्कुल हकीकत है? लेकिन गालिब के दीवान का अगर हम बाहर मुताला करें तो उनके कलाम में दर्द की एक लहर हमें नजर आती है, बिल्कुल गम में डूबी हुई शायरी कहीं कहीं पर नजर आती है। मसलन उनका ये शेर कि कहूँ किससे मैं के क्या है, कहूँ किससे मैं के क्या है, शबे गम बुरी बला है, मुझे क्या बुरा था मरना अगर एक बार होता, और रगे संग से टपकता वो लहू कि फिर न थमता, जिसे गम समझ रहे हो ये अगर शरार होता। इसके अलावा गालिब ये कहते हैं कि रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जब आंख ही से न टपका तो फिर लहू क्या है। देखिए कितना दर्द, कितनी तकलीफ उनके एक एक लफ्ज में भरी हुई है। या और एक शेर कहते हैं, बहुत ही अच्छा शेर है, सुन लीजिए। है सब्ज़ ज़ार
हर दरो दीवारे गम कदा, है सब्ज़जार हर दरो दीवारे गम कदा, जिसकी बहार ये हो फिर उसकी खजाना पूछ। देखिए कि जिसकी बहार ये हो, कौन सी, कि सब्ज़जार है, दरो दीवार जो है वो गमकदे में समाये हुए हैं, और जिसकी बहार ये हो तो उसकी खजा कैसी होगी। यानी कि जब हम अच्छी हालत में इतने खराब है तो जब हमारी खराब हालत होगी तो वो आप महसूस कीजिए कि वो कैसी हो सकती है। इसके बाद उमूमन गालिब के मुतालिक यही कहा जाता है कि वो बड़े से बड़े गम को हंसकर टाल जाते हैं, लेकिन जब उनकी शायरी का बगौर मुताला करें तो गम की एक लहर, यानी कि उनके जो गज़ल का जो एक बहुत ही ख़ास वस्फ है सोज़ व गुदाज, वो शायरी में कलाम जो इनका दीवान गालिब है उसमें जाबजा ये सिफत नज़र आती है किसकी, सोज़ व गुदाज की। और यही वो जगह है नाज़रीन बेशक कि जहाँ पर मीर और गालिब मिलकर एक हो जाते हैं। अक्सर गज़लें गम में डूबी हुई नज़र आती हैं, और जहाँ पर गालिब का जो दीवान है उसमें गम की एक लहर हमें देखने को मिलती है। इसके बाद जब गालिब का ये गम हमें नजर आता है, या उनकी कुछ गज़लें जो बिल्कुल मुसलसल तौर पर गम में ही डूबी हुई हैं, कि जैसे कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती, मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। देखिए कि जो बुजुर्ग इंसान होता है उसको नींद रात भर नहीं आती। अगर हम बुजुर्गों की बात करें तो वो रात भर नहीं सोते, या किसी का इंतकाल का सुन लेते हैं तो उनको तो नींद आदमी नहीं सकती। तो देखिए कि उस बात को उन्होंने इस तरह से रकम किया है अपनी शायरी में कि देखना तकरीर की लज्जत कि जो उसने कहा, देखना तकरीर की लज्जत कि जो उसने कहा। किसने कहा? गालिब ने। मैंने ये जाना कि गोया ये भी मेरे दिल में है। यानी शायरी को वो अपनी आप बीती को जग बीती बना देते हैं मिर्जा गालिब जब वो अशार कहते हैं। इसके अलावा नाज़रीन तसव्वुफ, फलसफा, फलसफा खुद आगही, इस्तफहाम व ज़राफ़त, ये तमाम खूबियाँ हमें कलाम गालिब में देखने को मिलती हैं। अब देखिए कुछ अशार हैं जिनको हम पेश कर रहे हैं यहाँ पर। तसव्वुफ का एक शेर है इनका जो बहुत ही मशहूर है, और अभी एमए का एग्जाम हुआ था लखनऊ यूनिवर्सिटी का, उसमें पूछा गया था तसव्वुफ का ये शेर, और ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स ने लिखा था कि न था कुछ तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता, डुबोया मुझको होने ने, न होता मैं तो क्या होता। अक्सर नाज़रीन आप स्टूडेंट्स ने ये शेर सुना होगा, लेकिन क्या इसकी तशरीह आप लोगों ने सही तरीके से की? देखिए सबसे पहले तो ये तसव्वुफ का शेर है। तो सूफीज़्म क्या है इसको समझना बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली तसव्वुफ है क्या, फ़लसफ़ा है क्या, सूफीज़्म क्या है, फ़लसफ़ा क्या है, इन अल्फाज की गहराई से जब तक हम वाकिफ़ नहीं होंगे तब तक कि हम दीवाने गालिब की जो अशार गालिब हैं, ये जो शेर गालिब का है, उसकी गहराई को हम नहीं समझ सकते, उसको डीपली नहीं समझ सकते। तो देखिए तसव्वुफ जो है फ़लसफ़ियाना मज़ामीन में ये कहते हैं कि ना था कुछ तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता, डुबोया मुझको होने ने, ना होता मैं तो क्या होता। कह रहे ना था कुछ तो खुदा था, यानी कि कुछ नहीं था तब भी खुदा था, कुछ नहीं होगा तब भी खुदा होगा। तो हम जो दुनिया में आए तो हम आए और गुनाह करके यहाँ से गए, उसके बाद हमें उन गुनाहों की सजा मिली। तो जबकि अल्लाह ही था, अल्लाह ही होगा, हमारा होना ना होना किस काम का, जब आत्मा को परमात्मा में ही जाके लीन हो जाना है तो हमारे होने का क्या फायदा। लेकिन अगर आप दूसरे ज़ाविये से इस शेर को देखें तो कह रहे हैं ना था कुछ, अब इसके आगे मैं का लफ्ज जोड़ दीजिए जो कि यहाँ पर पोशीदा है, छुपा हुआ है। कह रहे कि ना था कुछ, जब मैं कुछ नहीं था तो क्या था, तब मैं खुदा था। देखिए ये उनकी अना है, और ये दर हकीकत जो सूफी लोग होते हैं वो अपने आप को इंसान नहीं समझते, वो अपने आप को परमात्मा का एक अंश समझते हैं। यहाँ पे मैं हिंदी अल्फाज का इस्तेमाल इसलिए कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पर इसकी ज़रूरत है। परमात्मा का एक अंश कहा जाता है आत्मा को, ठीक है। तो अगर हम इसको कहें कि तो जो सूफी हजरात होते हैं वो अपने आप को परमात्मा समझ लेते हैं जब वो ये कहते हैं कि हमने अपने आप को अल्लाह में मतलब बिल्कुल लीन कर दिया, तब वो ये कहते हैं कि हमारा जो अंश था वो क्या था, ना था कुछ तो खुदा था। जब हम कुछ नहीं थे तो हम खुदा थे, कुछ ना होता तो खुदा होता, अगर मैं कुछ भी नहीं होता तब भी मैं खुदा होता, डुबोया मुझको होने ने, ना होता मैं तो क्या होता, क्या होता,
इसका जवाब है कि खुदा होता। तो ये इसमें मजमून पोशीदा है। यही चीज़ है शायरी की सबसे बड़ी खूबी जो है, ये जो फ़नून लतीफ़ा में शायरी को अफजलियत या फ़ौक़ियत हासिल है, वो इसी वजह से हासिल है कि शायरी की सबसे बड़ी खूबी ये है कि हर अहद में उसकी अलग अलग तशरीह अपने समझ से इंसान निकाल सकता है। जान दी हुई उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। ये वही गालिब है जो ये कहते हैं कि हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। या जब वो ये कहते हैं कि जबकि तुझ भी नहीं कोई मौजूद, फिर ये हंगामा या खुदा क्या है। तो ये वही गालिब है जो तंज भी कर रहे हैं और जिनकी जो तसव्वुफ है या इनकी जो मोहब्बत है माशूक़ हकीकी से, वो उनके इस शेर में जाहिर हो रही है कि जान दी तो क्या किया, और कोई एहसान नहीं किया। जान दी हुई तो उसी की थी, यानी अल्लाह की दी हुई थी। हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। हम तो इबादत करने के लिए यहाँ भेजे गए थे, लेकिन हमने क्या किया, हम अपनी नफ्सियात में पड़े और हमने अपनी सिर्फ इंजॉयमेंट पे ध्यान दिया और इबादत नहीं की। तो वो यहाँ पर ये जाहिर कर रहे हैं कि इन्हें कितनी अकीदत, कितनी मोहब्बत अल्लाह से है। इसके बाद फलसफे के कुछ अशार हैं। गम अगरचे जां गुसल है, ये कहाँ बच्चे के दिल है, गम इश्क अगर ना होता, गम रोजगार होता। अब यहाँ पर इन्होंने गम का पूरा फलसफा पेश कर दिया है कि हम अगर गम इश्क ना होता तो रोजगार का गम तो होता, क्योंकि इंसान का ये पेट कहाँ जाए, ये तो इसको तो 3 वक्त की रोटी चाहिए। ये जो बिल्कुल प्रैक्टिकल बातें हैं वो गालिब अपने अशार में पेश कर रहे हैं। उसके बाद गम हस्ती का असद किससे हो जो मर्ग इलाज, शमा हर रंग में जलती है सहर होने तक। अब देखिए कि ये जो एक मिसरा है इनका, गालिब के मिसरों में भी बहुत माने पोशीदा हैं। कह रहे हैं कि शमा हर रंग में जलती है सहर होने तक, यानी शमा जब जलना शुरू करती है और जब उसका इख्तिताम होता है तो आखिर में क्या होता है, कभी जलती है कभी बुझती है। ये तमाम चीज़ें इसके बीच में लगी रहती हैं। तो यही इसी तरह की ज़िंदगी भी होती है। जब इंसान पैदा होता है, फिर जवान होता है, फिर वो बिल्कुल शबाब पर आता है, तो उसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। ही इज़ इनफ इन हिमसेल्फ। उसके बाद अगर हम बात करें शमा हर रंग में जलती है सहर होने तक, बुजुर्गी में जब वो पहुंचता है तब क्या होता है कि चिराग टिमटिमाना शुरू हो जाता है। अभी तबीयत खराब हो रही, कभी कुछ हो रहा है, कभी कोई ऑपरेशन हो रहा है, ठीक है, या कभी दिल नहीं लग रहा है, कभी कोई वाक़े को सुन लिया तो उदास हो गए। तो इसको कहते हैं कि शमा हर रंग में जलती है सहर होने तक, जब तक कि इंतकाल नहीं हो जाता कोई ना कोई चीज़ बुजुर्गी के दौर में लगी रहती है। इसी तरह से फलसफा खुदागही देखिए, इसके तो बहुत सारे अशार मौजूद हैं, आप दीवान गालिब का मुताला जरूर करें, ये सजेस्टेड है आदमी बजाए खुद एक महशर ख्याल। कह रहे हैं कि है आदमी बजाए खुद एक महशर ख्याल, हम अंजुमन समझते हैं खलवत ही क्यों ना हो। देखिए कि इस एक मिसरे में हम अंजुमन समझते हैं खलवत ही क्यों ना हो। खलवत कहते हैं तन्हाई को, कह रहे हैं कि हम तन्हा भी बैठे हुए हैं। तो अल्लाह ने एक इंसान में इतनी चीज़ें रखी हैं, इतने जज्बात पोशीदा हैं, ज़हन दिमाग में इतने उसने अलग अलग गोशे रखे हुए हैं कि हम अंजुमन समझते हैं खलवत ही क्यों ना हो, कि हम अगर तन्हाई में भी बैठे हुए हैं तो हम गोया एक अंजुमन है। ये बात इकबाल ने भी अपने किसी शेर में कही है। वो अपनी खून न छोड़ेंगे, वो अपनी खून न छोड़ेंगे, हम अपनी वज़ा क्यों छोड़ें। इसको भी कहीं कहीं ये भी कहा गया है कि हम अपनी वज़ा क्यों बदलें और छोड़ें, दो चीज़ें कही गई हैं। तो दीवान गालिब जो नक़वी ने मुरतब की है उसमें छोड़ें लिखा हुआ है और बाज़ औक़ात बदले भी लिखा हुआ नजर आता है कि वो अपनी खून छोड़ेंगे, हम अपनी वज़ा क्यों छोड़ें, सुबुक सर हो कि क्यों पूछे कि हमसे सर गिरा क्यों हो। अब ये देखिए कि ये उनकी अना है कि इनका माशूक अगर इनसे खफा है तो वो अपनी आदत नहीं छोड़ रहे हैं, तो हम अपनी वज़ा क्यों बदलें। यानी कितने वज़ादार थे गालिब, ये भी उनकी शख्सियत का एक बहुत ही रोशन पहलू है। जब वो ये कहते हैं कि सुबुक सर हो के हम सर क्यों झुकाएं और हम ये क्यों पूछें कि आप हमसे खफा क्यों हैं, ठीक है। तो ये उनकी अनानियत है। इसके बाद नाज़रीन इस्तफाम और ज़राफत पर बात कर लेते हैं जो कि जाबजा कलाम गालिब में मौजूद है। पकड़े जाते हैं फरिश्तों के लिखे पर नाहक, कह रहे हैं कि पकड़े जाते हैं फरिश्तों के लिखे पर नाहक, आदमी कोई हमारा दमे तहरीर भी था। अब देखिए कि अल्लाह से सवाल कर रहे हैं कि हम नाहक फरिश्तों के लिखे पर पकड़े तो जाते हैं, लेकिन आप हमें ये बताएं कि कोई हमारा भी आदमी जो है वो लिखते वक्त मौजूद था।
ये बात होती है ना कि हमारा भी भाई इस पार्टी का भी मौजूद हो, उस पार्टी का भी मौजूद हो, फिर कोई बात लिखी जाए तब वो सनद के तौर पर पेश की जाती है। तो कह रहे हैं कि हम फरिश्तों के लिखे पर नाहक पकड़े जाते हैं। तो अब खैर ये उनका अपना ज़ाविया निगाह है, ये एक तरह से तंज कर रहे हैं, जिसको जाहिद हजरात अगर सुने तो उनको काफ़ी बुरा भी लगेगा। लेकिन अब ये शायरी है, यहाँ पर तो कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होते नहीं। जबकि तुझ भी नहीं कोई मौजूद, फिर ये हंगामा ए खुदा क्या है। इसी तरह से उनकी पूरी पूरी गज़ल है कि दिले नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है, जबकि तुझ भी नहीं कोई मौजूद, फिर ये हंगामा है खुदा क्या। ये पूरी पूरी गज़ल है उनकी, जिसको आप सभी ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि इसको पढ़ने का भी एक अलग लुत्फ है, एक अलग मज़ा है। और जिसका एक शेर कि अब्र क्या चीज़ है, हवा क्या है, इसकी तशरीह पहले के वीडियोस में पेश की जा चुकी है, इसको आप ज़रूर देख लें। क्योंकि गालिब के अशार जो है वो कहीं ना कहीं इमोशनल से हटकर प्रैक्टिकल भी आ जाते हैं। और सबसे बड़ी खूबी ये है कि बकौल आल अहमद सरूर गालिब से पहले जो उर्दू शायरी की दुनिया थी वो दिल वालों तक महदूद थी, गालिब ने उसको जहन दिया। तो गालिब ने उसको जहन किस तरह से दिया, इसको आप लोग जरूर पढ़ें। जिसको पढ़ने के लिए आप उनके दीवान को भी पढ़िए और आप उनको शरहों को भी पढ़िए जो कलाम गालिब पर लिखी गई हैं, और उन तनकीदी मज़ामीन को भी पढ़िए जो मुख्तलिफ नाक़दीन हजरात ने लिखा है। इसके बाद नाज़रीन हम गालिब के मुतालिक जो उलमा हजरात ने नज़रियात पेश किए उसकी बात कर लेते हैं। अब नाज़रीन इसके बाद हम शुरू करते हैं कि गालिब के मुतालिक जो मुख्तलिफ आरा व ख्यालात हैं उन पर भी सवालात आ जाते हैं, तो उसको भी आप ज़रूर पढ़ें। और आप तो पढ़ेंगे ही, खैर थोड़ा सा हम भी बता देते हैं ताकि एक आइडिया आपको मिल जाए। गालिब को हैवान ज़रीफ किसने कहा? तो नाज़रीन अल्ताफ़ हुसैन हाली की किताब है यादगार गालिब, जिसपे उन्होंने गालिब को हैवान ज़रीफ कहा है। इसके अलावा माजी का रचा हुआ शऊर, हाल के पेचोखम का एहसास और आने वाले दौर की किरणें भी सभी कुछ कलाम गालिब में मौजूद हैं, ये कहना है आल अहमद सरूर का। इसके अलावा आल अहमद सरूर ने ये भी कहा है कि गालिब से पहले उर्दू शायरी दिल वालों की दुनिया हुआ करती थी, गालिब ने उसको जहन दिया। गालिब को निशात का शायर किसने कहा? मुमताज हुसैन ने। गालिब को पहला फलसफी शायर किसने कहा? यूसुफ हुसैन खान ने। गालिब को खुद भी एहसास था कि वो अंदलीब गुलशन नाआफरीदा है, ये बात भी यूसुफ हुसैन खान ने कही है। इकबाल ने गालिब का मुकाबला गोयटे से किया। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि वो कौन सा शायर है जिसने गोयटे से गालिब का मुकाबला किया है, तो वो शायर इकबाल है। दीवार गालिब का हर मिसरा तारे रबाब नजर आता है, जाहिर है कि अब्दुल रहमान बिजनौरी ऐसा कौल कह सकते हैं। इसके अलावा रशीद अहमद सिद्दीकी को देख लेते हैं। तमाम मुमकिनात शायरी और शायरी बर्गो बार लाने के लिए सामान और सहूलतें फराहम है, किसमें? दीवान गालिब में। ये बात कही है रशीद अहमद सिद्दीकी ने। इसके बाद गालिब जदीद उर्दू नस्र के मूजिद और खुतूत नवीसी के रहनुमा है, ये बात आल अहमद सरूर ने कही है। बहुत से यहाँ पर ख्यालात हैं जिनको हम यहाँ पर पेश नहीं कर रहे। गालिब के मुतालिक हम यही चाहेंगे कि आप खुद मुताला करें। लेकिन जाते जाते एक और, मुगल दौर ने हिंदुस्तान को 3 चीज़ें दी। ये बात रशीद अहमद सिद्दीकी ने कही कि मुगल दौर ने हिंदुस्तान को 3 चीज़ें दी, पहला गालिब, दूसरी उर्दू और तीसरा ताजमहल। तो ये बात रशीद अहमद सिद्दीकी ने अपनी बहुत ही मशहूर जो उनकी किताब है जदीद गज़ल, उसमें उन्होंने ये बात कही है। इसके बाद नाज़रीन हमारा जो अगला शायर है वो है मोमिन, जिस पर हम अगले वीडियो में तबसरा करेंगे। फिलवक्त इतना ही। अस्सलामु अलैकुम।